आज के समय में being recorded, yeah. हेलो, जी जी सर। सुन रहे हैं सब? सुन रहे हैं जी सब सर, क्या? जी सर। आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल बोलिए साहब, ठीक ठीक है, कह रहा ओके। है, बोलिए बोलिए। हाँ। आ रही चलिए, है। आज स्वागत है। पहले सबसे पहले 15 अगस्त की बधाई सबको देते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के ही समय में संयोग है दोनों का। आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी एकदम खूब जिस बात को डॉक्टर हीरालाल जी ने कर दिखाया बांदा जिले में, और उसके चलते सभी सभा में उन्होंने प्रशंसा की थी। और उसके बाद नीति आयोग का उनके इस मॉडल को अप्रूवल मिला और उसके बाद आईसीआईसीआई फाउंडेशन इनको स्पॉन्सर कर करके हर जगह, हर जिले में, हिंदी स्टेट्स में हर जिले में इसे इस रूप को इस तरह से बनाने के लिए दिया, जो कि चूंकि नीति आयोग की जो योजनाएं थी वो जमीन पर दिख नहीं रहा था। लेकिन हम सलाम करेंगे डॉक्टर हीरालाल जी को, जिन्होंने खुद अपने घर घर जाकर के इसको बनाया और वो एक सफलतम एक मॉडल दिया, जिसे कैसे मिल कर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड बाय एसोसिएटिंग पीपल ऑफ द कंसर्न एरिया that we started in December and January at Bokaro. And then Dr. Hiralal ji started, when he started this thing from UP and Bihar, he conducted one program of Dr. Raman Jha. Then I participated. And then after, when we saw that this is a well-planned and approved formula of the change that we wanted to have, therefore we gladly saluted Dr. Lal, and I joined with him to convey. To convince. Therefore, we Mithila is the north of the Ganga area, and all states, all districts are flood affected and lack of communications. Therefore, there is concern, more concern of all Indian and other even Prime Minister, that this Mithila is backward and poor. There is no road connections, and this is what Kalajar was there. Therefore, this is the worst affected, poorest area of the country. And so we joined with him. With his blessings, we have now is going to set up a headquarter of the Mithila Punarmilan Kendra in Bangaon, Saharsa, which had joined by a Kosi bridge new after Mahasetu to two parts of the Mithila. That is the central point, Bangaon, a big and large village, having so many in the world educated on higher posts. Also Tarasthan Babaji, Lakshminath Goswami ji is there, which is the most reputed Sant Mahatma Goswami, and nearby is Tarasthan, Ugrtara, known tourist places, religious places, when Mandan Mishra and Shankaracharya is known for the historical change in the religious and spiritual. Therefore, sir, हम लोग अब मैथिली में थोड़ा सा ये करेंगे। हम सब बहुत गोटा एलो, हम आई 15 अगस्त का सबसे पहले सबके बधाई दे। आई शुभ दिन छिए अनेक तरह से देश के लिए, और अपना सबके जाए प्रधानमंत्री के धन्यवाद दी जे कि आई जे भाषण देलखिन से जे अपना सब करे ले चाहे छे तकरे पूरा देलखिन। जे डॉक्टर हीरालाल जी पूरा बांदा जिला में कलेक्टर बन के घर घर जाके केलखिन है। आज तक के इतिहास में बहुत पहले किछ गोटा रहे, लेकिन एहन आज तक क्यों नहीं केलके, जखन कि प्रधानमंत्री बार बार घोषणा करे छथिन कि जाइए गांव जाइए उस सांसद को या ककरो। तै द्वारे ई सब योजना हम सब 25 मॉडल पंचायत 2016 में से बनेने रही, जेमे कि बहुत गोटा एठा से क्षेत्र शामिल ओय में रहे। लेकिन 2016 में ई प्रोग्राम नहीं एले, एग्रीकल्चर पॉलिसी नोटबंदी भए गेलै, डिमोनेटाइजेशन, तै द्वारे ओकर बाद छितर बितर भए गेलै। लेकिन डॉक्टर लाल फिर एक प्रोडक्ट लेके एला जकरा की अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, पीएम एंड नीति आयोग, एंड आल्सो एसोसिएट्स. So many associates are there with him, Dr. Lal. This is a great thing for us, and we all together NRIs, our Maithils in NRIs are now united and fully cooperating to change Mithila, sir. Therefore, I on behalf of Mithila, I'll salute you, sir, Dr. Lal, and under your guidance, margdashans, we shall certainly work together to change within 2 years, as you have changed the Banda district in UP, with the Prime Minister's blessing and support. And I hope all government, all DCs, all MP and MLAs will listen to the Prime Minister's repeated questions, that to go to the villages, work with them, do honestly, and transform all schemes, either of the government or private, and
change the villages, because the villages, if it will change, the corona effect will be more serious and God country will not revive. Thank you, sir. आज हमारे बीच, हमरा सबके बीच में अजय बाबू छथि और डॉक्टर हीरालाल जी के परिचय कराइए दिलों, जे मॉडल गांव के छे, जकरा लेल बहुत अपना सबके एरिया में रजिस्ट्रेशन करा के फोटो दे के मैनिफेस्टो भए गेलै है। हर एक 15-20 जिला 15 जिला में 2-2 टा के ऑलरेडी प्रतिनिधि हम सब चुन लेलहुं है। आई बनगांव में एक केंद्र के उद्घाटन है, एकरा संग मॉडल गांव के लॉन्च है। दिन आई डॉक्टर हीरालाल जी एक तरह से छथि अपना सबके, और दिस विल बी अ हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ विलेज डेवलपमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स विशेस एंड डिजायर एंड ड्रीम्स। अब हमारे सबके बीच में छथि अजय बाबू। अजय जी जे ऑलरेडी एनआरआई छथि, 28 कंट्री में हिनकर छनि बिजनेस, ओहि बिजनेस के उम्र देख के पूरा डेडिकेटेड भ के आप नाउ ही हैज कम with all resources, all powers and all dedication to serve our Mithila, to revive from the corona losses and future of the Mithila. एहि द्वारा हुनकर हम स्वागत करै छियनि। हमरा सबके बीच में छथि श्यामल किशोर पाठक जी, रिटायर्ड आईएएस हैं सर। 6 महीना पहले वो रिटायर किए हैं और वो अभी आए हुए हैं और उन्होंने काफी यहाँ बिहार में रह करके काफी आप की तरह काफी काम किया है। और सबसे बड़े मजेदार बात एक चीज कह दें, उन्होंने एक्ट को, रेवेन्यू वाले एक्ट को जितना भी हुआ है उसको कविता के रूप में, इतना सरल रूप में, सहज रूप में, लोक भाषा में जैसे तुलसीदास लिखे थे उसी तरह से उन्होंने लिखी है। 3-4 किताबें छप चुकी है। इसी तरह से और हमारे विजय चंद झा हैं जो ऑल इंडिया सभी पूरे भारतवर्ष के जो मैथिल संगठन है उसके रह चुके हैं और समर्पित हैं। जीवन भर इन्होंने मैथिली और मिथिला की सेवा की है। अब इन्होंने भी सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए मिथिला के आर्थिक उन्नति में इन्होंने दिया है, जो कि आर्थिक उन्नति अब हम लोग के लिए करना बहुत सबसे जरूरी है। इसीलिए ये है। और हमारे साथ दूसरे लोग हैं। अब डॉक्टर पवन कुमार झा दिख रहे हैं। डॉक्टर पवन कुमार झा फरीदाबाद में है। ये जॉविस कंपनी के अभी हेड हैं R&D के, और टॉप 10 क्लासेस जो फार्मूला बनाने वाले कंट्रीज में हैं उनका है। हमारे साथ सुमित जय जी जो यूनाइटेड मिथिला फ्रंट के फेडरेशन के हैं, उनका नाम आ रहा है, देख रहे हैं। रंजीत झा जी हैं, हीरालाल जी हैं, मृदेर है, मॉडल गांव। और अपना अपना नाम अनम्यूट करके दिखा दीजिए पहले, जिनसे परिचय कराते रहे हम डॉक्टर लाल और अजय जी से। उसके बाद जल्दी से फिर डॉक्टर लाल को हम लोग आग्रह करेंगे जी कि वो अपना बात बताएंगे। दिलीप झा अररिया। दिलीप झा जी, अच्छा दिलीप झा अररिया। हाँ, अररिया। इनकी बात सर ऐसे है जो कि इनके यहाँ एक क्रांतिकारी काम हुआ। एक लड़की जो पढ़ना चाहती थी, उसकी मदद या दिक्कत थी, जो लोग फक्री करते थे, उस लड़की को ऑर्गेनाइज कर करके वो लड़की आगे बढ़ी और पूरा स्कूल खुलवा दिया वहां पर। और दिलीप झा बहुत ही अच्छे हैं और बारिश जमीनी स्तर से झुके हुए काफी काम किए हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी पंचम नारायण सिंह सुपौल। हाँ, पंचम नारायण सिंह जी ये सहरसा जिले में है। और सुपौल सर जी, सुपौल के हैं। आप बोल दीजिए, परिचय कर दीजिए जल्दी से, अनम्यूट कीजिए, बता दीजिए। जी मेरा नाम पंचम नारायण सिंह है और मैं बेसिकली सर्वोदय मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी एक संस्था है लोक भारती सेवा आश्रम। तो उसके माध्यम से मैं सुपौल जिले में काम करता हूँ सामाजिक क्षेत्र में पिछले 30 साल से। विभिन्न तरह के लाइवलीहुड और समझ गए आप सबका। और आज आप फिर आप जुट गए तो अब आप पर जैसी जिम्मेदारी मेरी है, हमारी है, बराबर के हम लोग हैं। एक एक काम को संभाल करके हम लोग सब चलेंगे। धन्यवाद पंचम जी, थैंक यू। चलिए आगे। मेरी आवाज जारी हो तो मैं प्रवीण कुमार झा, जिला कृषि पदाधिकारी किशनगंज। हाँ सर लाल साहब सुन रहे हैं सर? हाँ सुन रहा हूँ सर ये है प्रवीण कुमार झा जी सर। और ये अजय बाबू भी, अजय जी से भी कहेंगे कि सर इनके ऐसा अगर कृषि पदाधिकारी हो जाए सर और आपके ऐसा कलेक्टर, तो कोई जरूरी नहीं है लोगों को शांति से प्रगति 2 साल में जो होगा सर सो 10 साल में नहीं हो सकता है।
ये घर घर जाकर के जहाँ कहीं भी पता चलता है, जैसे आप गांव घर में बोले थे, हम लोगों को आपके आयोजन की बात कर रहे थे हम लोग के लोग अजय झा के बारे में सर, तो हमने कहा जो कि जी, डॉक्टर लाल का अंतर है क्या, और त्रिपाठी जी भी हैं मनरेगा कमिश्नर झारखंड के, उनसे जब बात हुई 1 घंटा तो उन्होंने कहा हम कह टिप्स बताइए सर क्या किया जाए। वो भी 500-700 गांव को बदल रहे हैं और वो भी नक्सल एरिया को बदल चुके हैं गांव को। तो बोले झा जी सबसे पहला काम है जो कि आप पहले अधिकारी या कोई सार्वजनिक बन कर करके गांव में चले जाइए, गोहाल में मचान पर बैठिए उनके साथ जैसे कोई चौपाल बैठता है, और उसमें जब कॉन्फिडेंस दे देगा अधिकारी तो उसको लगेगा विश्वास जो कि नहीं हमारा काम गड़बड़ाएगा नहीं, जो उचित होगा करेगा, जो आपने किया सर। तो ये हमारे जी। प्रवीण कुमार झा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है, जहां भी गए इन्होंने बनाया है, बहुत ही क्रांतिकारी काम उस समय में हुआ सर। बताएंगे फिर आगे चल करके हमारे जेम है कोसी में बाढ़ के क्षेत्र में ये हीरा मोती है सर। चलिए आगे बढ़िए। काउंसिलर जल्दी। शरद कुमार झा। शरद झा जी सर, ये एनआरआई के कोऑर्डिनेटर है, हमारे ग्लोबल कन्वेनर हैं, काउंसिलर है सर। इंडिया के पहली बार वहाँ कोई एमएलए की तरह काउंसिलर का चुनाव होता है। ये 12 ग्लोबल कंट्रीज के, 12 ग्लोबल कंपनीज के सर मल्टीनेशनल्स के एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, कंसल्टेंट हैं। ये सबसे बड़ा जगन्नाथ मंदिर वहाँ बन रहा है एशिया का, उसके ये फाउंडर ट्रस्टी हैं, और ये मिथिला के लिए पूरे समर्पित भाव से, विचार से, व्यवहार से, संस्कृति से सर जुड़े हुए हैं, और इनका पूरा का पूरा योगदान अजय जी का, इनका पूरा का पूरा सर इन लोगों का है। सारे एनआरआईज इन दोनों के साथ जुड़ कर करके हम लोगों को सर सहयोग कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ जुड़े। आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए कुलवंत जी, अनम्यूट कराइए। सबको नमस्कार। फुलकान झा, गांव बनगांव, और संप्रति बोकारो में रहते हैं। बोकारो से स्टील प्लांट से ही रिटायर्ड हूँ। हाँ सर, ये फुलकान जी हैं, ये बहुत ही मेरिटोरियस हैं, बाहर भी कंट्रीज में काम कर चुके हैं, हमारे मित्र हैं। और फुलकान जी जब जिला स्कूल में पढ़ता था सहरसा में सर, ये बनगांव जिला में पढ़ते थे, ये भी फर्स्ट करते थे, हमें फर्स्ट करता था। और जब इनके गांव गए तो ये उस समय में, मैं पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन धोती पहन करके एक डलिया लेकर के भगवती का पूजा करने जा रहे थे। और इनके बच्चे इंडोनेशिया में हैं सर, बहुत ही सीईओ हैं माइंडश्री के। और ये लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति जो है यहाँ का, ये हम लोग यहाँ जो बनाए हैं स्थापना बोकारो में, उसके ये अभी सभी कर्ता धर्ता वगैरह भी ये हैं, और इसी पूरा स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं। और ज्ञान इनका संपर्क जो है सो एक संत साधु के रूप में इंजीनियर है सर, हम लोग के साथ बनगांव के हैं, बहुत ही सामाजिक। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, मैं सुमित कुमार झा, सुमित जय झा, मधुबनी अररिया संग्राम से, झंझारपुर से, यूनाइटेड मिथिला फेडरेशन। मिथिला, यूनाइटेड मिथिला फेडरेशन। जी, सुमित जय झा। ओ सुमित जी, हाँ, आप क्या करेंगे धरती पर? हम लोग कैसे बना वर्किंग में क्या कहते हैं, जमीन पर काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा है ना ये लाल साहब का प्रोग्राम और मॉडल गांव बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये काफी अच्छा है। आपको, हाँ, आप ही को ज्यादा जमीन पर करना होगा। और इनका डिजिटल लाइब्रेरी का सर है, ये बहुत ही यंग है, अभी परीक्षा ही दे रहे हैं, कभी नौकरी नहीं हुई है सर, लेकिन ये ऐसे हैं जो इनके दिमाग में जैसा मोदी जी का दिमाग वैसे इनका दिमाग है करने का। अब है सवाल उतना रिसोर्सेज, तरीका और अनुभव चाहिए, इसीलिए हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं सर, और ये बहुत ही काम के आदमी हैं जो चाहते हैं अब जमीन पर काम हो। बात तो भाषण तो बहुत हो गया, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, दूसरे बताइए। हाँ नमस्कार भैया, एके सिन्हा बोकारो। कौन सिन्हा? कौन सिन्हा? आप लोग सुन पा रहे हैं? जी, हाँ, सिन्हा बोकारो। हाँ हाँ सर, सर सर, एके सिन्हा, एके सिन्हा। हाँ, अंजनी सिन्हा। लाल साहब सुन रहे हैं क्या? अजय जी, अजय बाबू सर सुन रहे हैं? हाँ, सब सुन रहे हैं ना? ये सर, ये हमारे मित्र हैं, मैंने हमसे जूनियर हैं, अभी जनरल मैनेजर हैं बोकारो स्टील प्लांट के। और ये इनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं सर। और ये सब कैसे कैसे हैं काम करने वाले, और कैसे सर धरती पर इनको ये किया जाता है, ये इसको देखना सबके यूथ के लिए बहुत ही प्रेरक है। जैसे एक अधिकारी होकर आपने प्रेरक किया। ये अपने 2 वाइफ को बोले, जो कि 2 बच्चा हुआ है, 2 लड़का हुआ है, उसमें खर्च हो रहा है,
अगर तीसरा बेटा होता तो 20,000 रुपया खर्च होता महीने का। हाँ, तो बोला वो 20,000 हमको दे दो, हम नर्सरी डेवलप करेंगे। तो जब हम 7 साल सर हर्बल पे बहुत काम किया, 98 से 2005 तक 4 लाख रुपया खर्च करके पूरा यहाँ से वहां तक किए थे, जो डॉक्टर कलाम भाई देखने के लिए राष्ट्रपति भवन में भी पौधा लगाए। वो हम ही अभियान चलाए थे हर्बल बैंक कर करके, और पैशन था मेरा सर। यहाँ से भोपाल हर जगह गए थे, और काफी उसमें एक पेट्राबाद में नर्सरी लगाया था, बहुत अच्छा। उसी को अंजनी जी आगे बढ़ाते हुए सर अभी स्टेट और नेशनल लेवल के पॉलिसी, जो नया सिद्धांत है, नई पॉलिसी, उसको क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। जो चंपई सोरेन जो मंत्री है, इनको बुला करके वहां लगवाया सरायकेला में। ये हम लोग के सबसे बड़े कृषि विशेषज्ञ हैं, और ये सब तरह से व्यवहार से, कुशल से, हेल्पिंग से, सब का नमूना है सर मिथिला का, जैसे हम लोग का इनका नमूना है। चलिए आगे बढ़िए। आगे किसले जी या सुमन जी या फिर ये मुन्ना जी, चमन जी, दिलखुश जी, बताइए। हेलो, हेलो, म्यूट हो चलिए, हमारा जाता है। ख्याल है अमरेश जी शुरू करिए, क्योंकि फिर टाइम जो है निकल गया। हाँ आधा सर, घंटा। हो गया। हाँ, तो फिर अब बाद सर में ऐसा है, इतना करने के बाद एक भिखारी मेहता थे, वो आने वाले थे सर। एक तो ये किसले जी हैं, जो हमारे बहुत ही आर्टिस्ट हैं सर, देखे होंगे जितना भी चीज बनाते हैं वो काफी नेशनल लेवल के हैं सर। किसले जी जो ऑर्गेनाइजर में भी वहाँ हैं। अब आप सर, आपसे रिक्वेस्ट है, हम अपने आदरणीय आज के चीफ गेस्ट स्पीकर श्री हीरालाल जी को आदर से आमंत्रित करते हैं। जो भी हम लोगों ने व्यवस्था की है सर, बता दिया जी कि ऑफिस खोल रहे हैं क्वार्टर, और 15 दूना 30 करीब 34 आदमी को हम लोगों ने चुना है, जो ऑलरेडी परफॉर्मर है, जो आपके ही सोच को हम लोगों ने प्रचार किया है। वही सी फॉर्मूला को हम लोग अक्टूबर तक, पूजा तक पूरा प्रचार कर करके सिस्टम और डाटा बना करके कंप्यूटराइज कर करके रखेंगे ऑफिस। आपके मार्गदर्शन में सर हम लोग चेंज लाएंगे वहाँ। थैंक यू सर। अब आप अपनी बात सर कह दीजिए, संदेश। ओके, थैंक यू। और मैं रमन झा जी को धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से आपको धन्यवाद दूंगा कि रमन झा ऑनलाइन हम लोगों से कनेक्ट हुए, और उनसे कनेक्ट होने के बाद हम लोग आज जो है आप सभी लोगों से कनेक्ट हुए। तो स्वतंत्रता दिवस की और 15 अगस्त की आप सभी लोगों को बधाई। मेरा ये मानना है कि समाज और सरकार जब मिलके काम करेंगे, तभी जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है कि हम विकसित देश बने, तभी वो पूरा होगा। आजादी के 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ मिला, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ हमें पहुंचना चाहिए, या जो हमारी जगह है, अभी वो रास्ता बाकी है कवर करने के लिए, हमें कवर करना चाहिए। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं, आज भी 70% आबादी गांव में रहती है, और 30% जो आबादी शहर में रहती है, वो भी गांव से ही जुड़ी हुई है। अगर शहर को कुछ भी खाने का सामान, दूध, मैक्सिमम सामान या मैक्सिमम चीजें वो देहात से ही जाता है। तो अगर इस तरह से माना जाए कि अगर हम अपने देश के गांव को मजबूत कर दें, जैसा कि महात्मा गांधी जी का सपना था, और जैसा कि अपने मिसाइल मैन एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद साहब का सपना था, अगर हम उसको पूरा नाम की स्कीम से वो सपना पूरा करना चाहते थे, अगर हम ये पूरा कर दें तो हम लोग बहुत शीघ्र ही विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आज का जो हमारे समझ में बात आ रही है कि सरकार और समाज दोनों को मिलके काम करना चाहिए, जिससे कि जो अभी हमने सोचा था, पाया नहीं है, मिला नहीं है, उसको प्राप्त करें। तो देखिए, जो ये मॉडल गांव है, ये एक सोच है, और अगर हम सोच नहीं बदलेंगे, वर्तमान सोच से अगर हम सोचेंगे तो हमारे गांव नहीं बदलेंगे। जब गांव नहीं बदलेगा तो हमें वो तरक्की नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। इसीलिए एक नारा दिया है, चलो गांव की ओर। ये नारा हमारा नहीं है। कोरोना की विपत्ति में, महामारी में लोग
शहर छोड़ के गांव आए, विपत्ति और मुसीबत में गांव ने साथ दिया। तो मॉडल गांव एक नई सोच है, एक नई पहल है। और हमें इसका सपना कहाँ से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। कि मैं अगस्त 18 से और फरवरी 20 तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था बांदा जनपद में। बांदा जनपद भी आपकी तरह, जैसे आपका जिला है कोसी नदी के बाढ़ से और अन्य मुसीबतों से जूझता है, उसी तरह से बांदा जिला पानी के अभाव से बहुत बुरी तरह से। तो वहां हम लोगों ने 20-22 प्रयोग किए, जनता को मिला करके जनता के साथ वाटर पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया गया। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई। चुनाव में हाईएस्ट परसेंटेज 11% बढ़ाया गया लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ, मैल न्यूट्रिशन हम लोगों ने दूर किया। इस तरह से जेल को नंबर 1 किया गया। 20-22 जो हम लोगों ने वहां प्रयोग किए उनके सब अच्छे रिजल्ट रहे। उन 20-22 प्रयोग को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो मॉडल गांव है। पहले हम लोगों ने बांदा में मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को, फार्मूले को टेस्ट किया, ट्राइड किया। टेस्टेड, ट्राइड एंड वेरीफाइड फार्मूला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, एसी कमरे में फार्मूला बना के गांव में भेजते हैं। इधर ये उल्टा है, पहले हमने प्रयोग किया धरती पे पूरे जनपद में और उसको फिर थियरी बनाई और उसे हम लोग लागू कर रहे हैं। देखिए ये जो नीचे लाइन लिखा है, मॉडल गांव की कार्यप्रणाली निम्न ट्रिक्स और टेक्निक्स पर आधारित है। यही मेन बात है। अगर आप सभी लोग, हमारे देश के लोग, अगर ये तीनों ट्रिक और टेक्निक्स अप्लाई कर लें तो उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है और वो जो सपना देखेंगे उनको मिलेगा। पहला है नो कास्ट लो कास्ट एक्टिविटीज एंड एक्शन। हम लोगों को वो काम करना चाहिए जिसमें या तो लागत बिल्कुल जीरो हो या कम लागत वाला हो। उदाहरण, जब हम पानी की बात गांव वालों से करते थे तो एसी कमरे में डीएम मीटिंग हॉल में नहीं करते थे। गांव के सबसे बड़े तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पे दरी बिछा करके बिना माइक के और कुल्हड़ में चाय पी के करते थे। तो क्या होता था कि आपका टेंट का पैसा, माइक का पैसा, तामझाम दिखावे का, फूल माले का पैसा सब बच जाता था और 0 पैसे में हमारा वो काम बहुत बढ़िया होता था। दूसरा क्या है कि कन्वर्जेंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फंड्स इनपुट्स एंड आइडियाज। आप लोगों के पास जो भी कुछ उपलब्ध है उसी को मिला जुला के हमें अपना काम करना है। ये नहीं कि हम कोई नया काम करने के लिए पैसा मांगेंगे, तो आप पैसा मांगोगे मिलेगा नहीं तो नया काम नहीं होगा। तो हमें जो भी हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं को मिला करके उसी में हमें गुल खिलाना है। तीसरा ये है कि सभी, जैसे गांव में है, मान लीजिए आपकी 5000 की आबादी है, तो ऐसा थोड़ी है कि गांव के 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग मिल करके काम करें और बकिया लोग सोते रहें। उससे विकास नहीं हो पाएगा। गांव में जितने लोग हैं, जितने भी गांव में लोग रहते हैं या गांव के बाहर रहते हैं, उन सभी को हमें मिलाना है और सबको मिलजुल के काम करना है। तो हमारा जो काम करने का तरीका है ये 3 ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं और हम इसी पे रिजल्ट पाते हैं। और अब हम आगे इसको बताएंगे कि हमने किस तरह से काम किया। हमारा विजन है गांव का चौमुखी विकास। हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया है, उससे हम गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करेंगे और गांव में जो अच्छे लोग हैं उनको चेंज मेकर बनाएंगे और उनसे गांव का विकास कराएंगे। अभी क्या है, गांव में अभी जो बेकार लोग हैं, जिसकी छवि खराब है, वो तो आगे हैं और अच्छे लोग पीछे हैं। हमें जो अच्छे लोग हैं पीछे हैं उनको आगे लाना है, जिससे जो खराब लोग हैं वो अपने में सुधार करके अच्छे बन जाएं और अच्छे की जमात में शामिल हो जाए। देखिए इसको बहुत 3 पार्ट में बांट करके बहुत सिंपल बनाया गया है। गांव का जो है एक विलेज मैनिफेस्टो है, उससे गांव के हर आदमी को जोड़ना है और गांव में जो अच्छे लोग हैं उनको चेंज मेकर बनाना है। और तीसरा पार्ट है, हर गांव में हमें एक कंपनी खड़ी करनी है, उसका नाम है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी।
हर गांव में फार्मर को प्रोड्यूसर कंपनी बनवाना है और चलवाना है। तो ये 3 सिंपल पार्ट हैं। अब जो पहला पार्ट है विलेज मैनिफेस्टो, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर इसकी जरूरत क्या है, इसके लाभ क्या है, ये समझना। खेती सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे अच्छा उद्यमी है, इसको हम नहीं मानते हैं। और जिस दिन हम ये मानना शुरू कर देंगे कि खेती सबसे बड़ा उद्योग और किसान सबसे अच्छा उद्यमी, उसी दिन हम लोग जो विकसित होने का सपना देख रहे हैं पूरा हो जाएगा। अगर गांव में आप किसी से पूछो विकास क्या है, तो उसको पूरी जानकारी नहीं है। विकास के अगर एजेंडा पूछो तो कहेंगे साहब नाली, खड़ंजा, सड़क, स्कूल, 4-5 पॉइंट बताते हैं, जबकि ये 25 पॉइंट है। और गांव में विकास की डिमांड नहीं है, देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट। तो ये विलेज जो मैनिफेस्टो है, इससे हम सभी लोगों को विकास की पूरी जानकारी देंगे, विकास के पूरे 25 पॉइंट का एजेंडा बताएंगे और सबके पेट में विकास के मांग का दर्द पैदा करेंगे। हम लोग विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव में एक हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, विकास का हंगामा। गांव में एक चुनावी माहौल पैदा करना चाहते हैं कि चुनाव किसका होगा? विकास का होगा। जीतेगा कौन? विकास जीतेगा। इससे फायदा क्या होगा? हर प्रकार से गांव मजबूत होगा, अपना सबका रोजगार होगा, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव का नाम रोशन होगा, सभी लोग खुशहाल होंगे, गांव के सभी लोग धनी होंगे। ये फायदा है। तो ये है विलेज मैनिफेस्टो। और विलेज मैनिफेस्टो के ये 25 पॉइंट हैं: सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, विलेज, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, संवाद तंत्र, जैविक खाद, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, गांव का लेखा जोखा, और ये जो है गांव का सीवी, बायोडाटा, ई विलेज, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, प्रवासी, ग्रामवासी, जो लोग गांव में पैदा हुए हैं और जिले के बाहर रहते हैं, हमें उनको कहना है ये गांव आपका है, गांव का कर्ज आपके ऊपर, गांव के विकास में जुड़िए और गांव का विकास करिए। और यह है कुपोषण खत्म करना है, वृक्षारोपण करना है, खेल, कला, संस्कृति जो हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसको जिंदा करना है, महिलाओं का विकास करना, गांव में प्रतिभा चयन और विकास, कोई नाचने में, कोई खेलने में, कोई खेती में, कोई जिसके अंदर जो भी प्रतिभा है उसे पहचानना है, आगे ले जाना है। गांव की समस्याओं का बैठ के समाधान निकालना है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को गांव में लाना है। और सबसे महत्वपूर्ण है गांव स्थापना दिवस। एक दिन आप लोग तय करेंगे, उस दिन गांव के सारे लोग गांव में आएंगे, जो बच्चे बच्चियां शादी होके वो परिवार के साथ, जो देश विदेश में रह रहे हैं वो आएंगे, और एक जश्न का माहौल होगा। और गांव का हम लोग गांव में एक दिन स्थापना दिवस। देखिए, ये हमारा विलेज मैनिफेस्टो है, जो कि मॉडल गांव के साइड से ऑनलाइन बनता है। और ये जैसे चुनाव में हम एक पेज का पर्चा छपवाते हैं, ऐसे ये भी गांव घोषणा पत्र एक पेज है, इसमें 25 पॉइंट हैं। और इसको जितने भी लोग हैं, अगर आपके गांव की आबादी, यहाँ गांव का मतलब है जो आपके यहाँ मुखिया बोलते हैं बिहार में, मुखिया का जितना बड़ा क्षेत्र है वो गांव का मतलब है। आप लोग ऑनलाइन ये विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, अपना फोटो लगाइए, परिवार को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, मोहल्ले को पढ़ाइए और गांव में विकास का हंगामा खड़ा करिए। तो ये है विलेज मैनिफेस्टो। विलेज मैनिफेस्टो से हम गांव में एक माहौल खड़ा करेंगे और हम लोग गांव में एक हंगामा खड़ा करेंगे विकास का। अब समझिए कि आपके गांव में माहौल बन गया, अभी माहौल नहीं है। गांव में अगर 10 लोग, 5000 की आबादी है, तो 10 लोगों को पता है और बकिया नहीं पता है, तो हमें सबको पढ़ाना है, सबको बताना है। अगर 5000 लोग हैं तो सबको देना है। ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी ताकत है। जो गांव में अच्छे लोग हैं, जिसको सामाजिक काम करने में मजा आता है, जो अपना नुकसान करके समाज के काम में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को छांटना है, उन्हें चेंज मेकर बनाना है। ठीक है, वही जो है बदलाव के वाहक होंगे। जो गांव में गांव को हम क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। अभी गांव की जो खराब स्थिति है, उस स्थिति को बदल के हम अच्छा करना चाहते हैं। तो चेंज मेकर गांव के वाहक होंगे, भ्रमण कर व्यवहारिक ज्ञान लेंगे। इसका क्या मतलब? आपके ही जिले में कोई डेयरी
का काम करके और अरबपति बन गया, कोई सब्जी का काम करके अरबपति, कोई मछली का काम करके अरबपति, आपके जिले में ही मुर्गी पालन करके अरबपति, दवाई पैदा करके अरबपति, आपके ही गांव में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो आपको जो ये अच्छे लोग मिलेंगे, सामाजिक लोग, जिसका नाम हम लोगों ने चेंज मेकर, वो अपने जनपद के डेयरी वाले के यहाँ गए और एग्री टूरिज्म करने जाएंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, रिफ्रेश भी करेंगे और वहां से डेयरी सीख के आएंगे और अपने गांव में लागू करेंगे, जिससे उनके गांव की भी इनकम बढ़ जाएगा। मछली पालन देख के आएंगे, अपने गांव में मछली पालन करने वालों को सिखाएंगे, इनकम बढ़ जाएगा। जाएंगे, व्यवहारिक नॉलेज लेंगे, मौज मस्ती भी करेंगे और ज्ञान की जो शक्ति की प्राप्ति होगी उससे आकर के गांव का विकास करेंगे। पहले ये जिले में करेंगे, फिर बिहार पूरे प्रदेश में करेंगे, फिर दूसरे प्रदेश में और फिर विदेश में। अब इसमें जो पैसा खर्च होगा, जो पैसा लगेगा आने जाने में, वो जितने लोग जाएंगे आपस में उसको मिलजुल के खर्च करेंगे, कांट्रीब्यूटरी होगा। इसके लिए कहीं से किसी को पैसा नहीं मिलेगा। मैं जब बांदा में कलेक्टर था, हमने 20 प्रधान को रालेगांव सिद्धि भेजा, अन्ना हजारे जी के गांव लोग गए। पहले उन लोगों ने जो खर्चा आया इकट्ठा किया, गाड़ी से गए, 1 सप्ताह अन्ना हजारे जी के गांव रहे। वहीं बगल में हिबड़े बाजार गांव है, पोपट राव का, वो भी मॉडल गांव है। दोनों गांव में सीख के आए, मौज मस्ती करके आए, रिफ्रेश होके आए और अपने 20 गांव में वो जो सीख के आए थे शुरू किए। तो ये है चेंज मेकर कार्य और इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। तो ये चेंज मेकर क्या होंगे, इस पूरे कार्यक्रम को ड्राइव करेंगे। अब पार्ट तीसरा है क्या, खेती ना करें, खेती व्यापार करें। क्यों? खेती घाटे का सौदा है। तो खेती जब घाटे का सौदा, तो हम लोग जब से देश आजाद हुआ खेती क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? खेती व्यापार करना चाहिए। तो खेती व्यापार करने के लिए हमें कंपनी चाहिए। तो गांव वाले मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे और कंपनी को चलाएंगे। जिस तरह से टाटा, बिरला, गोदरेज कंपनी के मालिक होने की वजह से धनी है, देश विदेश में उनकी इज्जत है, गांव वाले भी कंपनी के मालिक बनेंगे और वो गांव के पूरे घाटे को मुनाफे में बदल देंगे। तो गांव का जो नुकसान है वो फायदे में बदलेंगे और सभी गांव वाले टाटा, बिरला की तरह कंपनी के मालिक बनेंगे। ये भाग 3 है। तो देखिए ये बहुत सिंपल है। भाग 1 से माहौल बनाएंगे, भाग 2 से पूरे कार्यक्रम को चलाने वाले मैन पावर को डेवलप करेंगे और पार्ट 3 से हम लोग गांव के घाटे को कंपनी के सहारे मुनाफे में बदलेंगे। देखिए हम लोग गांव में कैसे घुसते हैं। तो गांव में, जैसा मैं यूपी की बात करूं, यहाँ 800 एफपीओ ऑलरेडी बना है। आप लोग भी अपने 25 गांव में देखोगे तो कुछ ना कुछ एफपीओ बनाए हैं। उनको संपर्क करते हैं, एफपीओ से बात करते हैं और उनके सामने जो एफपीओ चल नहीं रहा उसे चलवाते हैं, जो चल रहा है उसे दौड़ाते हैं, उनकी समस्याएं हल करके। अभी हमारे यहाँ चुनाव मई में हुआ है। सारे प्रधान लोग, आपके यहाँ मुखिया बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं, मध्य प्रदेश में सरपंच बोलते हैं। काम सब एक ही है। प्रधान लोगों के फोन पे हम लोग मॉडल गांव को बता रहे हैं। सारे प्रधान हम लोगों से जुड़ करके अपने गांव का विकास कर रहे हैं, जिससे अगली बार वो चुनाव ना हारे और निर्विरोध हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप और आंगनबाड़ी की सहायता से हम लोग महिलाओं को संपर्क कर रहे हैं और गांव में जो जहां जाति आय प्रमाण पत्र बनता है, जिसको कि जन सूचना केंद्र कहते हैं, उनको बीएलई भी कहते हैं, उनसे हम लोग गांव को डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं। गांव के नौजवानों को नेहरू युवा केंद्र और प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से हम लोग पकड़ रहे हैं। तो ये जो हमारे स्तंभ हैं, जिसके सहारे हम गांव में घुस करके नौजवान को पकड़ा, महिला को पकड़ा, प्रधान को पकड़ा, किसान को पकड़ा और गांव में तकनीकी को पकड़ा। इस तरह से अब हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया कि साहब आपका मॉडल गांव बहुत अच्छा है, टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड है और इसमें कोई बहुत झाम नहीं है, बहुत सिंपल है, लागू किया जा सकता, तो हम आपसे जुड़े कैसे? तो इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। मॉडल गांव की साइट पे रजिस्टर करें, हमारा विलेज मैनिफेस्टो लोड करें, ईमेल है, हमारे सारे सोशल मीडिया से जुड़े, मोबाइल नंबर से बात करें
और जो हमारी 3 कैटेगरी है, अगर मान लीजिए किसी को नेतागिरी टाइप का नेचर है तो विलेज मैनिफेस्टो करे। कोई आदमी हर काम को नए तरीके से करता है तो वो चेंज मेकर ज्वाइन करे। और कोई आदमी व्यापार में उसकी रुचि है, मतलब उसको धंधा करने में, तो हमारा चेंज मेकर ज्वाइन करे। वो अपनी रुचि के अनुसार हमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये हमारे तरीके हैं जिससे कोई भी आदमी पूरे देश विदेश में बैठ के मॉडल गांव से जुड़ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने आए साहब, ठीक है मॉडल गांव जुड़ गए, अब शुरू कैसे करें? तो सबसे पहले मॉडल गांव में काम करने के लिए आपके गांव की अगर आबादी मान लीजिए 3000 है, यहाँ गांव का मतलब मुखिया का गांव, मुखिया का क्षेत्र, और करीब 2000 लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो आपके 2000 लोगों को अपना फोटो लगा करके ऑनलाइन विलेज मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। और जब विलेज मैनिफेस्टो बन जाएगा तो उस पर आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा। सबसे पहले आप अपने परिवार में सबको पढ़ाइए, बताइए, आपके परिवार का ज्ञान बढ़ेगा, आपके परिवार की शक्ति बढ़ेगी। अड़ोस पड़ोस के मोहल्लों को वाले लोगों को पढ़ाइए, बताइए। और आप लोग अपने घर में पड़ोस में विकास का हंगामा खड़ा करिए, विकास का एक माहौल बनाइए, विकास का चुनाव करवाइए और विकास को जिताइए। दूसरा स्टेप यह है कि जब आपके गांव में ये माहौल बन जाएगा और इस तरह से एक हंगामा खड़ा होगा विकास का, तो आप कम से कम 25 लोगों को छांटिए। और 25 लोगों को छांटने के बाद उसके जानकारी, उसकी रुचि के अनुसार एक एक, जैसे मान लो कोई साफ सुथरा बहुत रहता है उसे सफाई दे दीजिए, कोई टीचर है उसे पढ़ाई दे दीजिए, कोई डॉक्टर है उसे दवाई। इस तरह से कोई जो है मान लीजिए उसको टेक्नोलॉजी में तो उसे ई विलेज दे दीजिए, कोई आदमी कॉमर्स का है तो उसे लेखा जोखा दे दीजिए, जिसकी जो रुचि हो जान ये लाट के। तो जैसे जिसकी सफाई है, जो सफाई वाला आदमी है उसके लिए हमने एक पन्ना बनाया, वो 25 पन्ने हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे और आप उस जिसको जो आप दायित्व देंगे उसको वो पन्ना, जैसे सफाई में, सफाई का मतलब ये है कि गांव के लोग गंदगी करें और सफाई कर्मचारी सफाई करें, इससे सफाई नहीं होगा। हमारा फार्मूला है कि ना हम घर में गंदगी करेंगे ना बाहर गंदगी करेंगे, तो गांव साफ रहेगा, घर साफ रहेगा। यही बात जो सफाई वाला आदमी होगा पूरे गांव में घूम घूम के समझाएगा, बताएगा और गांव साफ सुथरा हो जाएगा। हमारे पूरे फार्मूले में कहीं भी पैसे को इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमें अपने स्वभाव, व्यवहार, आदत में चेंज लाना है और पूरे गांव को एक साथ मिलके काम करना है पब्लिक पार्टिसिपेटरी अप्रोच से। और इससे हमें गांव का विकास करना है, हमें गांव को गांव रहने देना है, शहर नहीं बनाना है। ये भी एक समझने की जरूरत। देखिए हम लोगों को लगातार इनाम मिल रहे हैं, ये अंग्रेजी वाला यूके से इनाम मिला, ये नीचे वाला हिंदी वाला जो है, ये नीचे वाला नेपाल से इनाम मिला, गौरव भारत पुरस्कार इंडिया से मिला, तो इंडिया से एक मिला, एक नेपाल से मिला, एक यूके से मिला। लगातार हमारे इस मॉडल को, क्यों, ये मॉडल गांधी जी के सपनों को, मिसाइल मैन के पूरा के स्कीम को धरती पे उतार रहा है। बहुत साधारण तरीके से लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। स्मार्ट विलेज मूवमेंट डॉक्टर अनिल शाह अमेरिका में बैठ के चलाते हैं, उनसे हम लोगों का टाई अप हो रहा है, एमयू होने जा रहा है। नीति आयोग के चेयरमैन साहब ने हमारे इस मॉडल को खुले दिल से, खुले कंठ से तारीफ की। क्या तारीफ की, लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट को लगा दिया। नेक्स्ट वन। तो ये जो है, और लगातार इसका मीडिया के माध्यम से टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरे देश में न्यूज बनाया, नेशनल न्यूज बनाया, लगातार हर पेपर में, राष्ट्रीय सहारा के 34 एडिशन है उसने न्यूज लगाई। लगातार देश के प्रतिष्ठित सोशल साइट्स, न्यूज़पेपर इसको कवरेज दे रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो अभी ये स्लाइड है, ये सब लोग ध्यान से पढ़िए। हम आप सभी लोगों के मन में एक बात ये है कि अच्छा और नया काम करने के लिए पद, पैसा, पावर चाहिए। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है? अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच, इच्छा शक्ति और लगन की जरूरत है। आज के बाद से अपने जीवन में इस स्लाइड को आपके तन मन धन दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए, और जिसके तन मन धन में ये स्लाइड घुस गई वो कामयाबी की तरफ दौड़ने लगेगा। नेक्स्ट वन।
तो ये है मॉडल गांव की कहानी। ये हमारी टीम है और इसमें हमारे बहुत साइंटिस्ट हैं, एक्स-BCs हैं, पद्मश्री हैं, जो हमें गाइड करते रहते हैं और हमें अकल देते रहते हैं। हम उनके अकल से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये मॉडल गांव को मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूं। मॉडल गांव का मैं ऑनरेरी मेंटर हूं। मुनीष जी जो नाबार्ड के रिटायर्ड CGM है, उसके ऑनरेरी इसके जो है प्रेसिडेंट हैं। सौरभ लाल इसके CEO हैं। उनके ऑफिस, एक छोटी सी ऑफिस है जिसमें 4 लोग काम करते हैं। तो ये 5 लोगों की एक छोटी सी यूनिट है और मॉडल गांव को, इस यूनिट को चलाने में ICCI फाउंडेशन हमें सपोर्ट करता है और टेक्नोलॉजी के सहारे, मॉडल गांव की साइट के सहारे हम लोग इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में जो लाभ हम लोगों ने बांदा जनपद को दिया 1.5 साल में, उसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में उत्तर प्रदेश में, बिहार में, देश में, सारे प्रदेश में, विदेश में लागू कर रहे हैं। ये मोटा मोटा मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम बता रहे थे हमसे कैसे कनेक्ट करें। ये नीचे सोशल मीडिया, ईमेल, नंबर मॉडल गांव की साइट दिया हुआ है, ये कनेक्ट करने का है। नेक्स्ट वन, गांव की विरासत का हमें जानकारी नहीं है क्योंकि गांव के विरासत का कोई म्यूजियम नहीं है। हम लोगों का ये कहना है कि 100 साल पहले हमारा हाल कैसे था, गांव कैसे था, इसको हमें जानकारी होनी चाहिए। तो गांव के विरासत को संजो के रखने के लिए म्यूजियम होना चाहिए। ये हम लोग इसके प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि गांव के विरासत का, गांव का म्यूजियम नहीं, ये होना चाहिए। एग्री टूरिज्म, हमारे उत्तर प्रदेश में 10-12 लोग ऐसे हैं जो जिनका की घर, जिनका की गांव वो ताजमहल होटल की तरह है। वहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। प्रेम सिंह बांदा जिले में हैं, अब्बास सीतापुर जिले में, अजय मलिक मेरठ जिले में। ऐसे ही तो उदाहरण हम लोगों ने 3 ही दिखाया। ऐसे उत्तर प्रदेश में 20 लोग हैं जो स्वयं, उन्हें ना कोई सरकार सहायता दे रही है, उन्होंने अपने, उनका घर, उनका गांव ताजमहल होटल की तरह है। देश विदेश के अंग्रेज और विदेशी आते हैं। जिस तरह से शहरों में रुक करके और सैर सपाटा पर्यटन करते हैं गांव में, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कैसे गांव के टूरिज्म को बढ़ाया जाए, जिससे कि गांव का आर्थिक लाभ हो, गांव में रोजगार बढ़े। चलो गांव की ओर, सोच बदलो, गांव बोलो। मॉडल गांव गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सतत प्रयासरत है। ये हमारा पूरा मॉडल गांव है। और राघवेंद्र जरा एक जो है वो बना के दिखाइए, क्या आप एक बना के दिखाइए विलेज मैनिफेस्टो। देखिए विलेज मैनिफेस्टो कैसे बनेगा ऑनलाइन, ये अभी हम लोग एक प्रैक्टिकल 1 मिनट में करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको मॉडल गांव की साइट खोलना पड़ेगा। तो मॉडल गांव की साइट खोलेंगे www.modelgaon.org। देखिए ये मॉडल गांव की साइट खोल रहे हैं, देखिए आप स्क्रीन पे मॉडल गांव की साइट खुलेगी। उसके बाद एक इस पर डिस्क्लेमर आएगा, देखिए खुल रहा है। ये आप सभी अभी देखिए, ये मॉडल गांव की साइट खुल रही है। देखिए मॉडल गांव की साइट www.modelgaon.org। देखिए डिस्क्लेमर है, ऊपर से क्रॉस, देखिए क्रॉस पे ये क्लिक मार रहे हैं, क्लिक मारेंगे हट जाएगा। फिर आपको ऊपर से विलेज मैनिफेस्टो वाले कॉलम में, ठीक है, विलेज मैनिफेस्टो कॉलम में ये क्लिक कर रहे हैं। देखिए इन्होंने क्लिक किया, अब ये विलेज मैनिफेस्टो खुलेगा धीरे से, देखो खुला। अब आप नीचे आइए, स्लाइड करके नीचे आएंगे तो देखो ये लाल पीले में, लाल और हरे में बिलिंग कर रहा कि अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाओ। इस पर आप क्लिक करिए, देखिए क्लिक करिए, आप इस पर क्लिक करेंगे, बहुत सिंपल है। क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए ये फार्म खुल गया। फार्म में ये मोबाइल नंबर, नाम, ये पूरा डिटेल भरेंगे, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल, पता, ठीक है, पिन कोड, और लास्ट में ये कहता अपना एक फोटो अपलोड करो। अगर फोटो अपलोड करो, नहीं फोटो तुरंत खींच लो मोबाइल से। ये फोटो अपलोड करने के बाद नीचे जो क्या करेंगे, उसके नीचे आएंगे, सबमिट का बटन है। ये देखिए फोटो अपलोड कर रहे हैं ये हमारे जो मॉडल गांव के ऑफिस के राघवेंद्र जी हैं, ये अपना विलेज मैनिफेस्टो बना रहे हैं। अब देखिए पीला वाला जो है, हाँ ये सबमिट कर दिया इन्होंने। देखिए देखिए मॉडल गांव का बन के आ गया
और देखिए इस पर इनका फोटो नीचे लगा है, नाम लिखा, मोबाइल नंबर, पूरा पता लिखा। इस तरह से गांव में अगर 5,000 की आबादी है, 3,000 के पास मोबाइल फोन है, तो सभी लोग अपना इस तरह से फोटो लगा के पता लिख के मॉडल गांव बना सकते। इसको पीले वाले पे डाउनलोड करिए। हाँ देखिए, ये पीले वाले पे आप अगर क्लिक कर देंगे डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने बच्चों में, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदार को जहां चाहिए शेयर करिए। आपको एक सॉफ्ट कॉपी मॉडल गांव का बन गया। कितना आसान है, 1 मिनट लगा, कोई पैसा नहीं लगा। हमें इस विलेज मैनिफेस्टो से गांव में हंगामा खड़ा कर देना। तो ये मॉडल गांव था। हम लोग अभी तक मॉडल गांव को जनवरी में शुरू किए थे और खिचड़ी के दिन हम लोगों ने ऑफिस का उद्घाटन किया। फरवरी में कोरोना आ गया। विषम परिस्थितियों में इसको लेके चला रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में काम शुरू हो गया है और देश के 21 जिलों में मॉडल गांव पहुंच गया है। 21 प्रदेश में, सॉरी, उत्तर प्रदेश के 75 जिले में और देश के 21, क्योंकि ये टोटल ऑनलाइन है। किसी प्रदेश में कोई हमारा विलेज मैनिफेस्टो बनाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तुरंत उसकी सूचना हमें पता लग जाती है। टोटल हम लोग टेक्नोलॉजी के सहारे इसको देश विदेश में फैला रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि बिहार, उत्तर प्रदेश सटे पड़ोसी देश हैं। ये कहीं आप लोगों का भी कृषि आधारित काम है, हमारा भी है। तो जैसा कि अमरेंद्र झा साहब से बात हुआ, ये जो मिथिला के लोग हैं, आप लोगों के अंदर हर चीज मौजूद है। मेहनत मौजूद है, बुद्धि मौजूद है और आपके पास काम करने की तमन्ना मौजूद है और आप सभी लोगों के अंदर एक होने की क्षमता है। अगर हम सभी लोग एक हो करके, जैसा कि आप आज एक उद्घाटन एक ऑफिस का करने जा रहे हैं, हम किसी के सामने कुछ नहीं मांगेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है और हमारे लोग जो यहाँ की मिट्टी में पैदा हो करके बरगद का वृक्ष बन करके देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, उनकी सहायता से हम लोग मिथिला को क्या करेंगे, मिथिला के को क्या करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से मजबूत बनाएंगे। मॉडल गांव का अकल लगा करके, मॉडल गांव कुछ नहीं है, मॉडल गांव एक अकल का पुड़िया है, जिसको कि हमें उस दवाई पुड़िया को, अकल के पुड़िया को खाना है। वो जैसे शरीर में जाएगा ताकतवर बनाएगा और जो शरीर में ताकत आएगी उसी से विकास करना है, उस ताकत से। हमारा ये कहना है और यही सही बात है कि हम लोगों के दिल, दिमाग, सोच, तन, मन, धन में मॉडल गांव पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए आपको मॉडल गांव की साइट से कई बार पढ़ना पड़ेगा, मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, दिल, दिमाग, खून में ले जाना पड़ेगा। और अगर ये आप कर ले गए तो आपका गांव मॉडल गांव बनेगा, आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अजमाया, परखा और समझा हुआ फार्मूला है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आज दिन भी बहुत बढ़िया है, 15 अगस्त का, और हम लोग आज अपने, जिस तरह से 15 अगस्त को हम लोगों को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, गरीबी, गांव की गरीबी और बेरोजगारी, आज भी गांव गुलाम है। किसका? बेरोजगारी का गुलाम है और गरीबी का गुलाम है। हमें अब गांव की गरीबी, गांव को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना है। किसके सहारे? मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को गांव में लागू करके। ये हम लोगों का सपना है और आज से इसकी शुरुआत हो गई। मेरी शुभकामनाएं, पुनः 15 अगस्त की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और आप लोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ें, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अमरेंद्र जी। हाँ सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी थैंक यू।
Sir, I want some wishes from you. I am Sudhir. अमरेंद्र जी आप टेक ओवर करिए। अमरेंद्र जी, हाँ। हम सब यूज नहीं कर। अमरेंद्र सर अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ, मुझे लगता है इनके एंड हाँ पे जी सर, हो कोई, गया। हाँ हेलो जी, जी, हेलो। आ रही आवाज, बोलिए। हाँ, ये अभी कौन बोल रहे थे? सुधीर जी कोई? हेलो, सुधीर जी कोई है? देखिए राघवन जी। Yes, yes, I am. हाँ बताइए, आप अपना परिचय दे दीजिए प्लीज। जी मैं सुधीर सिंह बांदा जिले से हूँ। वो अच्छा अच्छा, वहां से है। अच्छा, जी। तो सुन, तो अभी हमारे अजय बाबू हैं, अजय जी, श्री माननीय अजय झा, जो मल्टीनेशनल है, MNCs के हैं, 28 कंट्रीज में इनका है। इनकी बात सुने, लेकिन एक चीज देखिए तो राघवेंद्र जी वहाँ थे, प्रणब संजीव जी आए हुए हैं क्या? प्रणब संजीव जी साथ साथ। नमस्कार। आगा बढ़ाओ, लेकिन फिलहाल जैसे संविधान में सर प्रणब कुमार सिंह दिख रहे हैं एक मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियरंजन जी, और आगे बहुत बहुत शुभकामना। कार्यक्रम के जो निर्धारित समय है, निर्धारित समय पर आरंभ है सब। अगर उद्घाटन इसलिए जी क्या हो रहा है? आगा बढ़ो, आगा बढ़ो। हाँ, किसले जी हैं क्या? आप देखिए ना। अरे ये उद्घाटन करना है। सर किसले सर तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। अच्छा चलिए, ये है सुमन जी हैं, सुमन समाज। सुमन मैम भी नहीं दिख रही हैं मुझे। अच्छा, जो भी है बोलिए जो कि उसका उद्घाटन करेंगे वो। अजय झा सर दिख रहे हैं मुझे। हाँ दीजिए ना, अजय झा को बोलिए, दीजिए ना, हमको दीजिए। अजय झा सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। अजय झा सर अगर आवाज आ रही है। जी जी जी, बोला जाए सर। आप किस लोग के अपना समाज में किस जवाब सार्वजनिक की बात। अमरेंद्र सर बोलिए, अजय सर अनम्यूट हो गए हैं। हाँ अजय जी, हेलो सर। अजय बाबू का बहुत अजय झा जी सर। किसले जी आगे। सर प्रणाम, मॉडल गांव टीम के सब गोटा का प्रणाम। अंदर में हॉल में इंटरनेट के अवस्था जे छे से बड़ा एकदम टुक टुक करे अवस्था के कारण जुड़वा में बेर बेर प्रॉब्लम समस्या सब भेल। कार्यक्रम सुचारू रूप से अपन समय से आरंभ भेल। अजय बाबू के द्वारा कार्यक्रम के उद्घाटन भेल। इनकर जे से वक्तव्य से हो भेलन। आदरणीय श्यामल पाठक सर, मुन्ना चमन सर, चंद्रशेखर बाबू, समाज जी सहित संजीव सिंह जी और कैलाश बाबू, पारस जी, डीडी न्यूज अरविंद जी, सजदर बाबू सहित सब गोटा बैसल छथि। और ठीक समय पर 8:30 बजे हम सब एखन जुड़ पेलहुं और कार्यक्रम के हम सब आब धन्यवाद ज्ञापन दिस ले जाब। ई एकटा बड़ा सफलता मॉडल अजय झा जी, अजय झा जी से बोलिए। कहा जाए जी। यहाँ का संचालन सबसे पहले तो बहुत ही हाई क्लास का हुआ किसले बाबू के द्वारा, और दुर्भाग्यवश चाहे डाटा का प्रॉब्लम था या वाईफाई का प्रॉब्लम था, हम लोग जुड़ नहीं पाए। लेकिन मैं बता दूं कि पिछले 1 घंटे से ये कार्यक्रम बड़ी सुचारू रूप से चल रहा है और अपने समापन की ओर है। आपने जैसा कहा कि उद्घाटन ऑफिशियली इसका उद्घाटन हो, तो मैं यहाँ उपस्थित जो जन समूह है और दूसरा आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव से या बाकी और माध्यम से, घोषणा करता हूं, मॉडल गांव के शुभ उद्घाटन का शुभ घोषणा करता हूं। मिथिला पुनर्मिलन केंद्र। और ये बड़ी खुशी की बात है, मैं इस पे फोकस करूंगा। मिथिला मॉडल गांव परियोजना, मिथिला पुनर्मिलन केंद्र, इसके भी उद्घाटन का मैं घोषणा करता हूं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब से लाइव हुए हैं, मैं देख रहा था आपका संचालन भी काफी अच्छा था। दुर्भाग्यवश हम लोग उसमें सहभागी नहीं हो पाए, लेकिन इधर किसले बाबू ने बहुत अच्छा आयोजन कर रखा है और ये अपनी समाप्ति की ओर है। मैं किसले बाबू को दे रहा हूं। जी सर, आदेश हो। आप अपना अजय बाबू बात करतीन कहीं कहियो बाजेला संदेश। अजय जी को कहिए संदेश। सबसे पहले उपस्थित सज्जन जो यहाँ पुनर्मिलन केंद्र पे हैं, जो अभी अभी इसका उद्घाटन हुआ है, और फेसबुक लाइव से जुड़े हमारे पूरे विश्व के जो हमारे मित्र हैं, जहां जहां जो जुड़े हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले बहुत ज्यादा जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे अमरेंद्र बाबू का है। कुछ बोल चुका हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा एक एम्बैरेसिंग है कि मैं उसको रिपीट करूंगा, लेकिन फॉर द लार्जर ऑडियंस आई विल रिपीट दैट कि मॉडल गांव इज समथिंग लाइक विलेज रिपब्लिक। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सब कुछ एक गांव के यूनिट में हुआ करता था, जो सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड गांव हुआ करता था। आज हमारा पिछड़ापन इसलिए नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारा पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि हमने जो अपना बेसिक यूनिट हमारा गांव था, जो वो सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड था, उसकी संरचना को हमने नष्ट कर दिया। तो ये सबसे पहला जो हमारा प्रयोग है कि इस गांव के उस मॉडल को फिर से पुनर्जीवित करना। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो सेंटर पुनर्मिलन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये मिथिला में ये मॉडल गांव को पुनर्जीवित भी करेगा। जहां तक बाकी प्रोग्राम्स का संबंध है, अमरेंद्र बाबू ने मुझे लगता है कि विस्तार से बताया ही होगा आप लोगों को। कालक्रम में एक एक कार्यक्रम आप सबके साथ साझा किया जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि आप सबसे बस इतना चाहिए कि आप हमें सहयोग करें, हमें उत्साहित करें, बस हतोत्साहित न करें। ये भी बहुत बड़ा योगदान होगा हम सबका और आप सबका। हम जितने भी काम करने वाले लोग हैं, हमें उत्साहित करें, हमारे एक एक प्रोग्राम में सहभागी बने, और वो एक एक प्रोग्राम ये हीरालाल जी के द्वारा जो सफलतापूर्वक यूपी में दिखलाया गया है, हम चाहते हैं कि बिहार में, झारखंड में और खासकर हमारे मिथिला में वही मॉडल्स फिर से सक्सेसफुल हो। और इसमें अमरेंद्र बाबू का हमें मार्गदर्शन मिले, हीरालाल जी का तो मार्गदर्शन है ही, और हम सभी कार्यकर्ता इसमें तन मन धन से जो भी कार्य हमें सौंपा जाए, जो भी कार्यक्रम हमें सौंपा जाए, हम उसके साथ जुड़े, लगे और अपने जीवन को अर्पित करें। एक बार ये मॉडल गांव सफल हुआ तो हमारा मिथिला भी सफल होगा, बिहार सफल होगा, झारखंड सफल होगा, और हम सभी जो आज बहुत उन्नत नहीं है, अपने आप को कह सकते हैं कि वी आर ऑल्सो डेवलप्ड सोसाइटी। बस क्योंकि मैं बहुत बातें बोल चुका हूँ, इस कह सकते हैं कि जब बैठे हैं तो ऑफलाइन में काफी बोल चुका हूँ, ऑनलाइन बोलना फिर से अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं किसले जी को फिर से सौंप रहा हूँ। जी सर, बहुत बहुत आभार सर का, और किशोर भैया का सेवा प्रणाम, दीपक झा जी का प्रणाम, शरद झा जी का प्रणाम, शंकर कुमार जी का प्रणाम। किशोर भैया बहुत दिन के बाद देख रहा छे, बहुत खुशी भर आ गया। प्रणाम। आउट हमारे जैसे थे उपस्थिति ऑफलाइन में, एक्चुअली हॉल में जैसे थे वो छपरी हो, बहुत बढ़िया हॉल। समाज जी, और अंत में चलते चलते नसीर साहब का वही प्रसिद्ध शेर कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, जिंदगी का एक नया एहसास पैदा कर, मांगने से जिंदगी मिलती नहीं है, आगे बढ़कर एक नया इतिहास पैदा कर, इतिहास पैदा कर। और
मॉडल गांव परियोजना के टीम यह एक इतिहास पैदा करे तय कामना के संग आजुक यही आयोजन है धन्यवाद ज्ञापन के संगे हम सब एक अनौपचारिक विश्राम ले छी मुदा इतर एक आरंभ छिए यह तो एक शुरुआत है दिस इज बिगिनिंग। धन्यवाद। हाय डॉक्टर शरद कुमार, कैन यू हियर मी? यस हाँ जी डॉक्टर शरद, कैन यू हियर मी? हाँ जी बिल्कुल अजय जी एकदम बिल्कुल आके आवाज पूरा बुलंदी से आबि रहल छै। धन्यवाद। नमस्कार, मैंने आपका मैसेज देखा अभी फेसबुक पे और यहाँ जितने हमारे उपस्थित मान्यगण हैं उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि लंदन से मेरा बहुत पुराना संबंध है और लंदन में बहुत ज्यादा आता जाता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं लंदन आऊंगा आई गेट माय ब्रेड एंड बटर फ्रॉम लंदन ओनली। बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ पर एक डॉक्टर आलोक चौधरी हैं, लवबरो यूनिवर्सिटी के चेयर हैं, वो कल आपके बारे में बहुत बड़ाई कर रहे थे कि अजय झा जब इससे जुड़े हैं और इतने अब सब लोग जुड़े हैं, अपने हीरा लाल जी तो खैर रंजन जी हैं ही, तो बहुत आपका अप्रिशिएट कर रहे थे डॉक्टर आलोक चौधरी। वो ब्लड और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के मास्टर हैं, वो हम लोग को जरूर मदद करेंगे उस लाइन पे। धन्यवाद। मैं दीपक जी को देख रहा हूँ। दीपक जी दीपक फाउंडेशन के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो साधुवाद भी धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम रखा है उसको चौपाट करेंगे आपके साथ। शंकर जी को मैं देख रहा हूँ, परिचय और भी होगा, और जो दूसरा नाम आ रहा है वो सही नाम नहीं आ रहा है, गैलेक्सी, तो माफ कीजिएगा। जो अभी हम हमारे परिचय का सिलसिला शुरू हुआ है और हम सभी एक दूसरे से परिचित होते जाएंगे और जैसे से परिचय बढ़ेगा साथ में हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। और अभी मैंने बहुत सारी बातें की हैं, इसीलिए उन बातों को इन सब के सामने उसकी पुनरावृत्ति अच्छी नहीं होती है, लेकिन 2-3 बातें चूंकि अभी इसका समापन की ओर है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जैसे 1853 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में कम्युनिस्ट सफल नहीं होंगे क्योंकि वहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, और एक्सप्लॉयटेशन का कारण यह है कि भारत के अंदर विलेज रिपब्लिक है विच इज सेल्फ कंटेन्ड, विच इज सेल्फ सस्टेन्ड। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ कंटेन्ड विलेज रिपब्लिक का दूसरा नाम मॉडल गांव है। हमें उसको पुनर्जीवित करना है, चाहे वो कार्यक्रम के द्वारा या जो हमारी जो सभ्यता संस्कृति थी। जैसे कि मैंने अभी इन सबको एग्जांपल दिया कि गांवों में क्या होता था, एक कोई भी फंक्शन आप ले लें, उस फंक्शन में पूरा का पूरा गांव सहभागी होता था। कोई काम करने आ रहा है, जिसके पास सब्जी है वो सब्जी तोड़ के लेके आ रहा है, बड़े लकड़ी का काम कर रहा है शादी के लिए, सोना का वो बना रहा है। तकरीबन हर पक्ष, हर वर्ग, हर व्यक्ति और कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करता था, और उस आर्थिक सहयोग और अन्योन्याश्रय संबंध जो इन सबका था, इसके वजह से हमारा गांव सेल्फ कंटेन्ड, इट वाज अ काइंड ऑफ विलेज रिपब्लिक। हमें दूसरों की जरूरत ही नहीं थी। जब तक हम उस मॉडल की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, और उसके लिए छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें हमारे मिथिला में हम लोग बड़ा फंक्शन अपने गांव में आके करें, हम बार अपने गांव आए। जो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे है वो फ्रस्ट्रेशन हकीकत में क्या है कि क्षमता सब में है और महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन क्षमता और महत्वाकांक्षा का तारतम्य नहीं बैठ रहा है। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में जा रहा है, और उस फ्रस्ट्रेशन को रोकने का कारण ये है, जो एक ही कारक है, वो अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। जब तक हम अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं करेंगे तब तक वो फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी रहेगा। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट होगा? हम लोग 5-6 करोड़ हैं, तो इस 5-6 करोड़ के लिए अपनी मिथिला की मैं बात कर रहा हूं, तो वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। तो उस संसाधन का हमने क्या तरीका क्या है? सबसे पहले हम अपनी संस्कृति, जो हमारी पहले संस्कृति थी, उसकी हम पुनरावृत्ति करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, उस सारे प्रोग्राम का जो कन्वर्जेंस, जो कि इस मॉडल गांव का बेस है, हम वो उसका कन्वर्जेंस करें। और जैसे हमने काम करने वाले लोगों को चुनना है जिसमें ये क्षमता हो कि जैसे कोई पागल खाने में डॉक्टर जाता है इलाज करने, ये मानकर कि सामने से मुझे गालियां मिलेंगी, सामने से कोई दुत्कारेगा, कोई हंसेगा, कोई मारेगा, पीटेगा, लेकिन मुझे इलाज करना है,
तो जब तक हमारी भावना ये नहीं आएगी कि इस समाज में हम एक पागल खाने के डॉक्टर की तरह जा रहे हैं काम करने, जहां हर तरह की कठिनाई आएगी, लेकिन मैं डॉक्टर हूं ये मान के कि मुझे तो इलाज करना ही है, तब तक इस समाज और इस गांव का भला नहीं होने वाला है। तो जो काम करने वाले हैं उनको भी अपने अंदर इतनी शक्ति लानी पड़ेगी कि वो मान के चले कि समस्या आएगी, मान के चले कि उनको रोकेंगे, मान के चले कि उनको हतोत्साहित किया जाएगा, मान के चले कि लेट पुलिंग होगा, लेकिन हमारे हतोत्साहित न होने का ही वही हमारा सोपान होगा। तो मैं इतनी चंद शब्दों के साथ, मैं नहीं चाहता लंबा और मैं खींचूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग सभी जुड़े हैं और जैसे जैसे हम लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक लड़ी से एक बहुत बड़ी माला बनेगी। ये भारत माला का अंश है, ये जो केंद्र है ये भारत माला, ये बनगांव, तो यही भारत माला हम सबकी माला बनेगी और हम उम्मीद करते हैं कि हम सफल होंगे, हम सक्षम होंगे। जिनको मैं प्रणाम कर पाया, मैं देख रहा हूँ शिल्पी के झा जी को, मैं देख रहा हूँ विजय चंद्र झा जी को, मैं देख रहा हूँ मैं अब नाम जरा दे, जो नाम नहीं दे पा रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप सबको मेरा अभिवादन है। और फिर से एक बार अमरेंद्र जी को मैं देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर आया है, नाम पूरा नहीं आ रहा है, नितिन सिंह जी का नाम आ रहा है। आप सबको मेरा अभिवादन और क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ पिछले 1.5 घंटे से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो जो कुछ मैं बोलूंगा ऐसा ना हो कि उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, वो रिपीटेटिव हो जाए, मैं रिपीटेटिव हो जाऊं, तो मैं नहीं चाहता इस चीज को करना, लेकिन ये मैसेज आप तक भेजना भी जरूरी था। मुझे पता है कि लाइव में और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं कैरिबियन में जो इसको देख रहे हैं, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो हिंदी समझते हैं, वो इसे देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके पास हमारी ये भावना पहुंचेगी, हमारी बातें पहुंचेंगी, और बस अभी का जो हमारा ये जो उद्घाटन समारोह है, ये हमें जोड़ने का उद्घाटन नहीं, हमें जोड़ने का समारोह है, ये हमारा मिलन का समारोह है। हम सभी मिल रहे हैं और हम जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ खिलेगा, और जब वो खिलेगा तो अच्छा ही खिलेगा। इसी भावना के साथ मैं विदा लेता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। राघवेंद्र जी अनम्यूट कर दो तो, इसको करो ना, सॉरी अनम्यूट करो ना, बोलेंगे। सर अनम्यूट है आपका? हाँ है। अरे हम डॉक्टर हीरालाल जी को पुनः हम प्रणाम करते हैं सर, बहुत बहुत आभारी हैं। और सबसे बड़ा है जो कि मिथिला क्षेत्र आपके लिए बहुत ही हम लोगों का पिछड़ा है, और आपके आने से निश्चित रूप से आपके प्रोत्साहन और सहयोग और समर्थन से हम लोग 2 साल करके वैसे ही बनाएंगे जैसे बांदा जिला को आपने बदला है। आपका छत्र छाया, आपकी मार्गदर्शन बना रहे, और हम लोग हमेशा आपसे संपर्क में रहेंगे। हम अजय जी, आप और ये लोग मिल करके और बाकी लोगों को जोड़ करके करेंगे। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप धन्यवाद आपका कि आपने ये बहुत बढ़िया आयोजन किया। मैं सभी लोगों को सुन रहा था, और बहुत जल्दी हम लोग, ये तो ऑनलाइन मीटिंग है, हम आपके शहर आएंगे और एक फिजिकल मीटिंग करेंगे, और सबके दिल और दिमाग और सोच, तन मन धन में मॉडल गांव को बसाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग वहां आएंगे, हम सब लोग फिजिकली मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अब ये तो ट्रेलर है, आज ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी पिक्चर की तैयारी करनी है, पिक्चर बनाना है और पिक्चर सबको दिखाना है। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।